آپ دیکھ رہے ہو گلیشر ٹائمز اور میں ہوں عمر رینا۔ میرے ساتھ آج کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے آج۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو سروس سلیکشنز بورڈ ہے انہوں نے پوسٹ نکالے تھے، کلاس 4 پوسٹ، جس کے ساتھ ہی لاکھوں کی تعداد میں فارمز آئے۔ سینٹرل کشمیر گاندربل سے بھی بہت سارے لڑکوں نے کافی محنت کی ہے، انہوں نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا، لیکن یہ جو میرے ساتھ دو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس روز انہوں نے اپلیکیشن فل اپ کر دی، اس کے بعد جو ایک CSC سینٹر ہے نزدیکی، یہ دونوں جو لڑکے ہیں یہ گنیون کنگن سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو اس وقت جو CSC سینٹر میں انہوں نے فارم بھرا تھا، انہوں نے کہا تھا ان دونوں لڑکوں کو کہ ان کو جو ہے آپ بعد میں آ جانا، ہم آپ کو اپلیکیشن ID دیں گے۔ تو جیسے ہی آج 3 دن ہو گئے لگاتار ایگزام شروع ہوئے ہیں SSB کے، تو ان کا ایگزام آج تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہمیں ایڈمٹ کارڈ نکالنا ہے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر CSC سینٹر میں جو بندہ موجود تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ وہ آج آ جائے، یعنی کہ آج کی تاریخ میں ان کا ایگزام بھی تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ وہاں پر گئے تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کچھ ایڈمٹ کارڈ وغیرہ دے دیا، تو یہ وہاں سے نکل گئے ایگزام کے لیے۔ تو جو ہی یہ ایگزام سینٹر میں پہنچے تو ان کو جو دونوں ایڈمٹ کارڈ ہے یہ دونوں فراڈ نکلے۔ انہوں نے کسی اور کا جو ہے ایڈمٹ کارڈ پہ ID نمبر جو دیا ہے وہ کسی اور کا، جس کا ایگزام آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو یہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو 6-7 مہینے تھے جو انہوں نے محنت کی تھی وہ پوری آج پانی میں مل گئی۔ آئیے انہی سے جاننا چاہیں گے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا۔ جی، آپ کا نام؟ میرا نام امتیاز احمد قریشی ہے۔ میں ہری گنون کنگن سے بلانگ کرتا ہوں۔ سر، جس ٹائم لاسٹ ایئر جب JK SSB نے کچھ پوسٹس نکالی تھی 4th کلاس کے لیے، تو ہم نے بھی اپلائی کیا تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن تھی اس کی وجہ سے 2G انٹرنیٹ تھا۔ ہم نے وہاں ایک CSC سینٹر والا ہے اسی سے اپنا فارم جو ہے وہ اپلوڈ کروایا تھا۔ بٹ سر اس نے اس ٹائم بولا کہ ہمیں کچھ پرنٹر میں ایشو ہے، تو ہم اس ٹائم آپ کو یہ نہیں دے سکتے اپلیکیشن ID۔ سو جب ہم اسی ٹائم میں نے اپنی ڈومسائل کے لیے بھی اس کے پاس اپلائی کیا تھا، اس نے بولا ان دونوں کا میں آپ کو ساتھ ہی میں دے دوں گا۔ بٹ جب ہم تھرو JK SSB نے اپنے ایڈمٹ کارڈز جو ہے وہ اس کی لنک شیئر اپلوڈ کی، تو ہم گئے اس کے پاس۔ اس نے ہمیں پہلے تو وہ بول رہا تھا کہ میں دوں گا روز کے چکر لگانے پڑے۔ بس جب ہم گئے اس کے پاس تو اس نے ہمیں ایک فیک ایڈمٹ کارڈ بنا کے دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ کسی اور کے نام سے بلانگ کرتا ہے۔ وہ لڑکا بھی آج وہیں پہ تھا، جس کے وہ وہیں کا رہنے والا ہے، میرے ساتھ ہی کا۔ سر جب ہم نے یہ فارم بھرا تو یہ بہت مشکل تھی ہمارے لیے، کیونکہ ہم ایک پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ بہت مشکل تھی ہمارے لیے یہ فیس وغیرہ مینیج کرنی، بیکاز آف دس پینڈیمک آف COVID-19۔ سو اب جب ہم آئی ایم پریپیئرنگ فار دس ایگزامینیشن فار دا لاسٹ آف 6 months۔ بٹ جب ہم آج گئے وہاں پہ اپنے ایگزامینیشن سینٹر میں، اور وہاں پہ ہمارا بالکل نام ہی نہیں ہے۔ JK SSB والے بول رہے ہیں کہ ہمیں اس نام کا کوئی بھی فارم اب سبمٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ سر یہ بہت سر ہم پچھلے بہت ٹائم سے لگ بھگ 6 months سے اس کی پریپریشن کر رہے تھے، لیکن جب آج ہم گئے اپنے ایگزامینیشن سینٹر پہ، وہاں پہ ہمیں بولا جا رہا ہے کہ اس نام کا کوئی بھی ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہے، اپلوڈ ہی نہیں ہوا ہے۔ سو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اب کسی کے ساتھ اور نہ ہو، بس۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو لڑکا ہے میرے پاس، جو کینڈیڈیٹ ہے، میں نے ابھی سنا کہ یہ بہت ہی محنتی لڑکا ہے اور یہ ٹاپر رہا ہے 12th کلاس میں، 10th کلاس میں۔ یہ بہت جو بورڈ ایگزامس ہوتے ہیں ان میں ٹاپر رہا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ چند ایک خود غرضی کی وجہ سے ان کا پورا کیریئر جو ہے برباد کر دیا۔ ایک CSC سینٹر والے نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ آج ان کا ایگزام تھا، JK SSB کا ایگزام تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں جو ہے کتنی بے روزگاری ہے۔ JK SSB والوں نے کلاس 4 پوسٹس نکالے، تو اس کے لیے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں فارمز بھی آ گئے۔ کینڈیڈیٹ جو ہے پچھلے 6-7 مہینوں سے محنت کر رہے ہیں اس ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے، تاکہ ان کو کوئی روزگار مل سکے اور اپنے وہ اہل عیال اور اپنی خود پرورش کر سکے۔ تو میرے ساتھ ایک اور کینڈیڈیٹ ہے یہاں پر، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ۔ جی
मेरा नाम गुलाम मोहम्मद चौपान है. आई एम बिलोंग टू हारी गैनवन. मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मैं आमिर के पास आ गया था जब जैसे ही क्लास 4 के पोस्ट निकल गए तो मैं उस CBS की सेंटर वाले के पास आ गया. उसका नाम आमिर है. मैंने कहा आमिर भाई मुझे ये फॉर्म भरने हैं. बोला किसके फॉर्म? मैंने कहा क्लास 4 के फॉर्म. जब मैंने उसको किया तो मैंने कहा इसकी ये रेंट देनी क्या है, इसकी पे फीस कितनी ये देनी है. उसने कहा 350 रुपीज़. तो मैंने उसे 400 दे दिए. मैंने कहा ले लो ये, आप लो ये ले लीजिए इसकी पे. और उसके बावजूद मैंने कहा मुझे इसकी प्रूफ दीजिए कोई जिसमें मैं ये देख सकूं. उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा, कुछ दिनों के बाद आ जाओ. और मैं जैसे मैं कुछ दिनों के बाद आ गया, बोला मेरा प्रिंटर में इशू है. प्रिंटर के इशू के होने के बाद तो बोला कोई बात नहीं, जैसे आपके पोस्ट निकलेंगे मैं आपका ये एडमिट कार्ड तैयार रखूँगा. यहाँ तक कि मुझे पता नहीं था एडमिट कार्ड होता भी है क्या, ना मुझे एप्लीकेशन के माली में बारे में मालूम था. अगर मुझे पता होता था तो मैं पहले इसे कहीं और ये एडजस्ट करवाता था. लेकिन उसने जब मुझे ये कहा कि आप तो इसका मतलब सीधा है कि उसने आपको अभी तक आज तक धोखे में रखा. हाँ, उसने हमें आज तक आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई थी क्योंकि हम कहीं आगे न जा सके, कहीं और ये बना ना सके. उसने फीस लेकर और हमें धोखे, हमने कहा था और तक जब तक पहले ये 27 को एग्ज़ाम था वो देकर पेपर मैं, उसके बाद वो मुझे कहता है. मैंने कहा आमिर मुझे कल आ जाओ. जब ये 28 तारीख आ गई मैं पूरा दिन उसके पास बैठ कहा 1 बजे के बाद आ जाओ, मुझे थोड़ा काम है, भाई हो. तो मैंने कहा इसने इस भाई बोला तो मैं फ़र्ज़ निभा सकता हूँ. जब इसने भाई कहा है तो मैं 1 बजे के बाद कहा 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको. जब तक 3 बजे मैंने कहा देरी हो गई यार, कहाँ रुको मैं देता हूँ. उसने हाथ उठा दिया और कहा ले लीजिए. मैंने ऐसे ही पकड़ा, मैंने कहा मैं देसी नज़र, मैंने कहा टाइमिंग की अपने हिसाब से मैं कैसे देखना था वो मैंने देख लिया. लेकिन मैंने जब ये लिंक ऊपर व्हाट्सएप पे आ गई थी लिंक, मैंने कहा था मैं एप्लीकेशन ये ID देखूँ ये ठीक है, वहाँ वो दिखाता इनवैलिड. मैंने कहा आमिर ये क्या है? कहा ये साइड होगी बैठकर इसलिए इनवैलिड दिखा रहा है. मैंने कहा ये भी हो सकता है, साइड प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन जब हम वहाँ तैयार कर रहे थे तो सवेरे में उठ गया अजान से. मैं पहले रात के लगभग करीबन 3:45 को सो गया और 4:45 को मैं नहीं 5:45 को मैं फिर नींद से जागा. फिर वज़ू बनाया, नमाज की तरफ गया. नमाज के बाद आप रात भर इसके लिए मेहनत करते, आपने रात भर पढ़ा. आज आपका एग्जाम था, आज मेरा एग्ज़ाम था क्योंकि मैं इसी मेहनत में रहा कि आज मेरा पेपर है. जो मैंने 6 महीने या 6.5 महीने मेहनत की है वो मुझे किनारे मिलनी चाहिए, ना कि पानी में बहनी चाहिए. इसीलिए मुझे रात भर मुझे नींद नहीं आ गई क्योंकि मैं इस खुशी के साथ था मुझे कल एग्ज़ाम देना है. मैं इंशाल्लाह टॉप करूँगा. टॉप नहीं तो तब भी अपनी मैं पोजीशन हासिल कर लूँगा. तो लेकिन जब मैं वहाँ सवेरे निकल गया 7 बजे 7:15 8 बजे को मैं बस को चढ़ा तो वहाँ पहुँचा मैं गांधरबल. 2 गाड़ियाँ मुझे चेंज करनी पड़ी, आने जाने करीबन 200-250 रुपये खर्च हो गई. तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, उसको था कमरे इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम. पहले मैं उसके साथ गया तो उसने जब वहाँ गया तो उसने देखा हाँ रोल नंबर मेरा, अब तुम्हारे देखते हैं. मैंने कहा चलो. जब हम वहाँ आ गए डिग्री कॉलेज के पास, इस साइड बॉयज़ है और इस साइड गर्ल्स है. मैं गया तो मैंने कहा वहाँ गेट कीपर था, उसने कहा क्या है? मैंने कहा ये बॉयज़ है, इस पर देख लो. मैं देखता रहा एक एक करके वहाँ लास्ट का था 921 लास्ट का ये रोल नंबर था. जो लास्ट के 3 वर्ड्स होते हैं ये लास्ट वहाँ पे ये लास्ट का था. ये मतलब वहाँ 921 थे वहाँ पे. जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये इसमें बहुत पंगा है. अगर चलो मेरा एक नहीं है तो इसमें बहुत सारे, इसमें कम से कम 20 मिसिंग है. तो उनने मैम को की कॉल का ये रोल नंबर मिसिंग है, इसे चेक करो. उसने हर एक सेंटर में कॉल की. कॉल करने के बाद तो आगे सर, उसने कहा बेटे क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है. उसने ऐसे देखा आपने खुद ही बनाए? मैंने कहा सर कहाँ मैं खुद बनाऊँगा, कहा कहीं और ये करवा लो. वहाँ कोई और आ गया, उसने कहा आप ये खिदमत सेंटर वाले पास जाओ, एप्लीकेशन ID कर लो. मेरे फ्रेंड्स ने उनने वहाँ देखा वहाँ इनवैलिड दिखा रहा है. फिर सर आ गया, उसने वो ऊपर तक पहुँचाई बात और वो हर एक रोल नंबर जानकारी देकर इसमें की चेक. कहा ये कोई ये क्या कैसर पसवाल ऐसे कुछ बोला था. उसने एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया है 27 को इस रोल नंबर से. तो आपको इसी रोल नंबर पे उसने ऑलरेडी एग्जाम दिया है. हाँ, कैसर पसवाल ने इसने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया. कहा आप कैसे दोस्त? फिर उसने कहा उस सर को फ़ोन कहा मुझे उसका ये दीजिए, उसकी ये डिटेल्स दीजिए, वो है कोई यही मत है या आप दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए. और उसने अपनी तरीके से वेरिफिकेशन की. जब उसने किया उसने उसको प्रिंट निकाला, वहाँ कोई और था वो जिसके मैं जान तक नहीं था. और तो फिर सर ने कहा चलो मेरे साथ ऊपर. हम गए वहाँ अपोजिट इस लेफ्ट हैंड साइड अपर फ्लोर. तो वहाँ पहुँचे, वहाँ सभी ये तहसीलदार साहब प्रेजेंट थे. कहाँ बेटे आपने उनसे तहसीलदार, आप उसके बाद तहसीलदार साहब के पास गए इस बारे में बताने के लिए? सर हमारे साथ थे, जो वहाँ के वो सर है जो जिसे ये हैंडल कर एग्ज़ाम ड्यूटी का हैंडल कर रहे थे, जो ऊपर सीनियर होता है वो हमें साथ है. कहा सर इन्हें प्रॉब्लम है, इन्हें ये रोल नंबर इश्यूज़ है. तो सर ने कहा बेटे क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा सर ऐसे प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं है. तो फिर मैंने काम किया, तो मैंने सर ने कहा यहाँ दे दो. सर ने देखा इस तरफ,
बोला क्या पता उससे प्रिंटर में मत ये प्रॉब्लम होगी या टेप करते वक्त या कुछ और। मैंने कहा हो सकता है वो भी। उसे जब कॉल की उसने कॉल रिसीव नहीं की, फिर करते करते ऑलमोस्ट 37 कॉल्स किए होंगे इसी सीएससी सेंटर वाले को। हाँ CS सेंटर 37 उसने कॉल्स। कॉल रिसीव मैंने नहीं भी की। कॉल की, तहसीलदार साहब था उसने भी कॉल की, जो इसका सीनियर था ये एग्जामिनेशन का उसने भी कॉल की, मैम थी वहाँ उसने भी कॉल की, बट उसने कॉल रिसीव नहीं की। तो फिर उसने कॉल की किसी एक नंबर से मुझे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये नंबर जिससे उसने मुझे कहा ये कॉल की, ये देख लीजिए 12 बजे वो मुझे कॉल करता, तब तक हम लोगों को वेटिंग में बिठा के रखा था। तो ये फिर आप क्या देख कहा इसने आपको? सर मैंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है, कर मैं देखता हूँ, मुझे गलती मत हुई है। मैंने कहा हो सकती है, गलती हर एक से होती है। तो लेकिन उसने कहा इसमें यही निकलता है फिर। तो सर ने कहा, मैंने कहा सर हम क्या करेंगे, आप ये एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम इसे आगे कार्रवाई करेंगे। हमने एप्लीकेशन लिख दी, हमने कहा हमें एग्ज़ाम में हॉल में बैठने तो दे दो। कहा हम आप लोगों को अलाउ नहीं करते। कहा अगर आपके पास रिसिप्ट है जो फीस भी है तो हम आपको अलाउ करेंगे। हमारे पास जब कुछ नहीं था तो हम कैसे वहाँ पे बैठ सकते। जैसे हम वहाँ पे बैठे, मैंने कहा सर हमारे प्रॉब्लम को सर का आप वेट करो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ये आ जाएगा। जैसे टाइम गुजरता गया हम लोग निकलने लगे बाहर। तो जैसे हम बाहर निकल, पीछे से आवाज़ आ गई आप बाहर नहीं जा सकते हो जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होंगे। तो मुझे आंसू आ गए। मैंने कहा एक ना हम एग्ज़ाम देते हैं ना हमें पता है पेपर का, तो हम क्या करेंगे बाहर जाकर। हम तो सीधे कुछ अपने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी, हाँ उल्टा चोर खुद ही को पीटे, कोतवाल को कोई कुछ ऐसा ही है। तो मुझे आंसू आ गए, तो मैं इतना इरिटेट हुआ, मैंने कहा या मैं खुद को तो मैं बर्दाश्त करता। उन लोगों ने हमें बाहर भी नहीं जाने दिया। फिर आगे चढ़ गया ऊपर, तो मैं गया वहाँ तहसीलदार साहब होते हैं, मैंने कहा सर हम लोगों को बाहर जाने क्यों नहीं देते हो। बोला क्यों, आप जा सकते हो। मैंने कहा अभी आप लोगों ने बोला, जब उसने पहले टाइम देखा यानी कि अब टाइम हो गया है, तो उस लोगों ने कहा फिर जाओ आप जा। उनको कहा इन्हें जाने दो, तो ये एग्ज़ाम ये वैसे भी हमारे सेंटर में नहीं इंटर हुए ही नहीं थे, ये नहीं हुए ही नहीं थे इंटर। तो मैं फिर इसने सर को बोला था, बोल सर हमारी मेहनत तो पूरी ज़ाई होगी। इम्तियाज़ ने कहा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लो, तो आप दोबारा ये मेहनत करो तो फिर से आप एग्ज़ाम दे दो। तो फिर मुझे आंसू आ गए इसके बदले, बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने को, तो उसने आपको कहा दूसरे साल आप एग्जाम नेक्स्ट क्या पता वो पोस्ट निकलेगा या ना निकले। हमने जो मेहनत की, हमें इसका क्या, ये तो पूरे पानी में फिर गई। हमें अब इंसाफ चाहिए। और अब आप क्या चाहते हो, आपकी फाइनल मैसेज क्या रहेगी अब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आइंदा कोई बेचारा कोई गरीब जैसे मुझ जैसा कोई गरीब होगा कि अगली ऐसे कोई गलत कदम इसकी तरफ ना रखे, किसी को आंखों पे पट्टी बांध के ना हो। अगर जो ऐसे भी सेंटर है कहीं भी, उन्हें जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। तो नाज़रीन आपने देखा, इनकी भीगी हुई आंखों से ये आंसू बता रहे हैं कि जो ये सीएससी वाला है, कोई गनीवन कंगन का रहने वाला है, तो एक तो इन बेचारों से पैसे ले लिए और ऊपर से इतना बड़ा धोखा दे दिया कि इनकी जो लाइफ है पूरी बर्बाद कर दी। सभी लोगों को पता है कि जो कश्मीर, जो वादी कश्मीर में यहाँ पर बहुत से जो बेरोज़गारी बढ़ गई है। अब लोग जो SSB है वो धीरे धीरे पोस्ट निकाल रहे हैं। इसके लिए अब सारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेहनत करते हैं ताकि वो कुछ बन सकें, कुछ उनको कुछ रोज़गार मिल सके और वो अपने अहलो अयाल के साथ साथ ख़ुद अपनी परवरिश कर सके। लेकिन जब यहाँ पर इतने बड़े फ्रॉड मौजूद होंगे तो एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट बेचारा कैसे मेहनत करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। जब यहाँ समाज में, हमारे समाज में इतने बड़े फ्रॉड रहते हैं, तो एक कैंडिडेट बेचारा कितनी मेहनत करेगा और किस लिए करेगा। इनकी भीगी हुई आंखों से आपने देखा कि ये मतलब इनको आंसू आ रहे थे, ये डिप्रेशन में चले गए हैं। अब जो ये अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे अपील करते हैं कि इस CSC वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले जो दिनों में या आने वाले सालों में ये किसी के साथ ऐसा बड़ा फ्रॉड ना करे। गांधरबल से ग्लेशियर टाइम्स की ये खुसूसी रिपोर्ट।